Hari Om to everyone else. So, yesterday, what our Sanskrit Acharya Mansaramji took, he will try to cover the same with some new addition that will be enveloped. So, you can please make a note that yesterday what we learned. So, first start the class. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Guru Paramparaya Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Samastajana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahmavidvaram. So yesterday we learned the verb, usage of verb in present tense. From the root, how we create verbs in Sanskrit. Today again we will learn the same because it is little bit critical also, because the root is bhu. When it is used in the present tense, it is becoming bhavati. So it's little bit critical. So if we learn it again, it will be better for us. And second thing we learned, Atmanipadi and Parasmaipadi, who are Hindi Bhashi. Little bit glimpse you get through these words. Atmanipadi means when verb is used for one's own sake, the Atmanipadi is used. When the same verb will be used to do something else for others, then that will be Parasmaipadi. Para means other than me. But one thing will be mentioned over here, that how it is used. Actually, it was strictly followed in ancient scriptures and literatures. But nowadays, in modern Sanskrit or very recent past literature also, that Atmanipadi and Parasmaipadi concept was demolished. Then how it will be used? Some verbal roots are strictly Parasmaipadi. They never are used in Atmanipadi. Some verbal roots are there which are only used in Atmanipadi, not in Parasmaipadi. Some verbal roots are there who are Ubhayapadi, means may be used in Atmanipadi and Parasmaipadi both. Now the question will come, how we will know that this is a Parasmaipadi dhatu or Atmanipadi dhatu? The answer is, practice makes a man perfect. There is no such tablet or capsule that you will know. You have to practice, you have to read again and again, and you will be able to know what is Parasmaipadi and Atmanipadi. The word I am using, the sentence I used, my Acharya told me that same.
Then we learned the number ekah, dve, trini, chatvari, pancha, shat, sapta, ashtam, nava, dasha, ekadasha, dvadasha, trayodasha, chaturdasha, panchadasha, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और ऊनविंशत्. एक then विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टविंशतिः, नवविंशतिः और ऊनत्रिंशत् and त्रिंशत्. We learned yesterday, and we learned some shishtachara or code of conducts, like how I will welcome someone else. Now it's a very common trend in Western pattern. Hey, hey. So we have never learned from our childhood that with any elderly people or someone else, we will ask them, hey, 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 hey. In Sanskrit is a very gentle language. It is Deva Bhasha, used by the gods and goddesses. So all the codes of conducts are there, very much depicted over there in nice manner. So today again we will cover that. Now over to Mansa Ramji for our today's class. Hari Om. सर्वेभ्यो नमो नमः. सर्वेभ्यो नमो नमः. कथं सन्ति भवन्तः? भवन्तः कथं सन्ति? अहं तु सम्यक् अस्मि. अहं सम्यक् अस्मि. Hope you are all okay by the grace of the Lord. तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. आज हमारे 10th क्लास है. भगवता कृपया सर्वे सम्यक सन्ति, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड होप यू आर ऑल ओके. तो अब से मैं बीच बीच में मतलब संस्कृत बोलूंगा और उसको ट्रांसलेट भी उसके बाद कर दूंगा. तो प्लीज आप ये सब मतलब नोट डाउन कीजिएगा और फिर याद रखिएगा. तो यस्टरडे जैसे कि हम लोगों का जो सूची है, तो यस्टरडे हम लोगों का जो क्रियापद हम लोग सीखे थे उसका ही बात हुआ था, मतलब 8th क्लास में. तो पिछले दिन हम लोग 10 क्रियापद सीखे हैं. तो क्रियापद क्या है, जस्ट महाराज तो सब कह ही दिए कि यस्टरडे हम लोग क्या सीखे और क्या नहीं. तो मैं जस्ट 1-2 मिनट के लिए बोलूंगा और फिर आज जो क्लास है हम लोग वहाँ आगे बढ़ेंगे. तो क्रियापद संस्कृत में जो धातु है वो 2 तरीके होता है मेनली. एक है परस्मैपदी और एक है आत्मनिपदी. तो आत्मनिपदी परस्मैपदी ये जो सुनने में ही लगता है कि आत्मनिपदी मतलब मेरा खुद का, परस्मैपदी मतलब दूसरे का. तो कौन धातु कौन पदी है, मतलब आत्मनिपदी है या परस्मैपदी है, तो ये हम लोग मतलब जितने प्रैक्टिस करेंगे उससे जान सकेंगे. क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज में करीब 2000 धातु है. 2000, और ये एक जो धातु है इसका 10 रूप है. तो ये सारी मेमोराइज करना लगभग इम्पॉसिबल है, पर इम्पॉसिबल नहीं, बहुत कठिन है. तो हम लोग यस्टरडे हम लोग सीखे थे जो मैं मतलब उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष का रूप. उत्तम पुरुष मतलब मैं, हम लोग जानते हैं कि मैं और मेरा है उत्तम पुरुष, और तुम या तुम्हारा इंग्लिश में यू ये मध्यम पुरुष, और ये दोनों अलावा जो भी है शब्द है ये सब है प्रथम पुरुष.
तो पिछले दिन हम लोग सीखे थे कि उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष का रूप कैसे होता है, और कई धातु जो 10 धातु हम लोग सीखे हैं उसका ये दोनों रूप क्या क्या होगा। तो उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखा है, जो ट्रांसलेट, ये आप लोगों का नेक्स्ट वीक का टास्क है। तो इसको आप लोग नोट डाउन में भी आप लोग अभी कर लिए होंगे, और अगर नहीं हुआ है तो बाद में ये वीडियो जब यूट्यूब में डाला जाएगा उससे आप ले सकते हैं। तो यस्टरडे हम लोग जो धातु सीखे थे तो उसका आज स्टार्ट करेंगे, और मतलब 11 से 20, मतलब पिछले दिन 10 सीखे थे, आज नए 10 सीखेंगे। तो पिछले दिन क्या क्या सीखे थे मैं जस्ट 1 मिनट के लिए बता दूं कि पिछले दिन हम लोग सीखे थे भवती, यानी होना। भवती ये उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष का रूप है, और उत्तम पुरुष का यानी मेरा जब होगा तब होगा भवामी। उसी तरह पश्यति मतलब देखना, और अगर अहम मतलब मैं देखता हूँ, इसको हम लोग संस्कृत में क्या कहेंगे, अहम पश्यामी, अहम पश्यामी। इसी तरह हम लोग सीखे थे उठना को क्या कहते हैं, उत्तिष्ठामि, और लिखना को क्या कहते हैं, लिखामी। उसी तरह जो किसी स्मेल हम लोग जब ग्रहण करते हैं, उसको जो स्मेलिंग है उसको क्या कहते हैं संस्कृत में, जिघ्रामी, मतलब अहम जिघ्रामी। यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रांसलेट है, यहाँ पे जो दिया है स्मेलिंग का ये है, तो यहाँ पे हम लोग करना है कि ये इसका संस्कृत क्या आएगा, तो नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखे थे कि मैं पढ़ रहा हूँ, अहम पठामी। मैं जा रहा हूँ, अहम गच्छामी। मैं सुन रहा हूँ, अहम शृणोमि। मैं याद कर रहा हूँ, अहम स्मरामी। और जो लास्ट है, मैं कुछ चीज को टच कर रहा हूँ, अहम स्पर्शामी। तो आज हम लोग 10 या उससे ज्यादा कुछ नए धातु रूप सीखेंगे। तो क्या है, प्रथमा मतलब प्रथमा पुरुषः, पुरुष ये पुंलिंग है, इसीलिए यहाँ पे प्रथमः हुआ। और उत्तमः पुरुषः, उत्तमः ये पुंलिंग है, या और सॉरी पुरुष जो है ये पुंलिंग है, इसलिए यहाँ पे उत्तमः यहाँ पे पुंलिंग हुआ है। तो जो हम लोग हंसते हैं, मतलब स्माइलिंग, स्माइल को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, हसती। प्रथम पुरुष में हसती, हसती। हसती का यूज हम लोग कैसे करेंगे कि रामः हसति, रामः हसति। या फिर रमा हसति, रमा हसति। यहाँ पे रामः और रमा जो है ये करता है, और ये पहले है रामः जो हसति ये पुंलिंग में है, और रमा हसति ये स्त्रीलिंग में है। तो ये हसति जो है ये क्रियापद है। तो हम लोग पिछले दिन सीखे थे कि हसति इसका कोई चेंज नहीं होगा। ये पुंलिंग, नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग जो भी लिंग में हो, ये क्रियापद किसी के द्वारा मतलब किसी लिंग के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। और ये जो हसति क्रिया है या फिर जो उत्तम पुरुष का रूप है असामी,
ये सारे प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि राम जा रहा है अभी, तो रामः गच्छति, उसी तरह राम हंस रहा है, रामः हसति। और ये हसामी जो है ये उत्तम पुरुष में है, तो उत्तम पुरुष का यूज होता है कि जब मैं और मेरा ये हमारा विवक्षा होगा, मतलब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे कि मैं हंस रहा हूँ, तो उसका हम लोग संस्कृत में कैसे क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे अहम हसामी। अहम हसामी, पर अहम हसती ये कभी नहीं होगा, या फिर रामः हसामी या फिर रमा हसामी, ये गलत है, क्योंकि ये प्रथम पुरुष का रूप है हसती, और हसामी जो है ये उत्तम पुरुष का रूप है। तो हंसने का संस्कृत हम लोग सीखे, प्रथम पुरुष में हसती और उत्तम पुरुष में हसामी। उसी तरह हम लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हम लोग, तो सपोज कृष्ण, सपोज कृष्ण जो गीता जो है कृष्ण अर्जुन को बोला है, अगर ये तो मतलब पास्ट में हुआ है, हम लोग इसको अगर प्रेजेंट में यूज करना चाहे तो ऐसा होगा, प्रथम पुरुष का जो बोलना है उसका रूप है वदति। वदति मतलब बोल रहा है, मतलब ये कंटिन्यू है, और उत्तम पुरुष का रूप है वदामी। अगर अगर हम लोग जो गीता अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया है, इसको हम लोग प्रेजेंट में यूज करना चाहे तो क्या होगा, कृष्णः कृष्णः अर्जुनाय गीतां वदति। तो ये वाक्य हम लोग देख सकते हैं, कृष्णः अर्जुनाय गीतां वदति। कृष्ण इस सेंटेंस में करता है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ही बोल रहा है। किसको बोल रहा है, हम लोग जब कारक सीखे थे तब संप्रदान कारक, मतलब किसको प्रति या किसी को कुछ बोलना, तो अर्जुन के प्रति, ये अर्जुन के उद्देश्य से बोल रहा है, तो इसीलिए अर्जुन आया यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हुआ है, और संप्रदान कारक, क्योंकि कृष्णा तो मेरे उद्देश्य से नहीं बोल रहा है, अर्जुन के उद्देश्य से बोल रहा है। तो जब उद्देश्य ऐसा हमारा अभिप्राय होगा तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति होगा, हम लोग पहले ही सीखे हैं। तो कृष्ण अर्जुनाय गीताम वदति। गीताम यहाँ पे कौन सी विभक्ति हुआ है, द्वितीय विभक्ति। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण वदति क्या कह रहा है, तो किम वदति, अगर ऐसा प्रश्न आया तो उसके निराशन करने के लिए गीता यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है और कर्म कारक। तो कृष्ण अर्जुनाय गीता वदति, यहाँ पे देख सकते हैं कृष्ण वदति, तो कृष्ण बोल रहा है। तो प्रथम पुरुष का जो बोलने का जो धातु है वद धातु, उसका प्रथम पुरुष का रूप है वदति। इसी तरह अगर मैं अर्जुन को गीता बोल रहा हूँ, अगर ये हमारे अभिप्राय है तो क्या होगा, अहम अर्जुनाय गीता वदामि। अहम अहम अर्जुनाय गीता वदामि, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब कृष्ण वदति, कृष्ण जब बोल रहा है तब वहां पे वह वदति, और अगर मैं बोल रहा हूँ
यहाँ पे हो गया वदामि। और एक चीज यहाँ पे मैं जो अर्जुन आए हैं, यहाँ पे चतुर्थी का यूज किया है, तो चतुर्थी के यूज किया क्यों किया है हम लोग वो तो जानेंगे, मतलब अभी अभी सीखे। यहाँ पे हम लोग द्वितीया का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग जो हिंदी में यूज करते हैं और बांग्ला में कि किसके प्रति, तो ये जो प्रति शब्द है उसको अगर यहाँ पे जोड़ दे तो ऐसा होगा अर्जुनम प्रति, अर्जुनम प्रति। ये कारक का एक रूल्स है, तो वहां पे अर्जुनम, यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति आएगा, तो गीता और अर्जुन दोनों में ही द्वितीय विभक्ति आ जाएगा। ये मतलब ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो बद जो हम लोग कहते हैं बोलते हैं, इसको संस्कृत में जो प्रथम पुरुष का रूप है वदति और उत्तम पुरुष का रूप है वदामि। इसी तरह मैं कुछ जानता हूँ या फिर वो जानता है, या फिर हम लोग यूज कर रहे हैं या आई नो और ही नो, तीनों जो भी है। तो ये जो जानने का संस्कृत क्या है, जानने का जो संस्कृत के प्रथम पुरुष है उसको जानाति, जानाति, और उत्तम पुरुष का रूप होगा जानामि। तो अगर हम लोग ऐसा कहें कि अर्जुन युद्ध जानता है, अर्जुन युद्ध जानता है, तो हम लोग इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे, अर्जुनः अर्जुनः युद्धं जानाति। अर्जुनः युद्धम जानाति, मैं तो युद्ध नहीं जानता, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अहम युद्धम न जानामि। अर्जुनः जानाति अहम न जानामि, यहाँ पे अहम इसका प्रयोग, मेरा प्रयोग है, इसीलिए उत्तम पुरुष का रूप यहाँ पे हुआ जानामि। और अर्जुन ये प्रथम पुरुष का रूप है, इसीलिए जानाति ये जो धातु का रूप है प्रथम पुरुष में, यहाँ पे प्रथम पुरुष और एक वचन की यूज हुआ है, क्योंकि अर्जुन ये प्रथम पुरुष और एक वचन है। तो इसी तरह हम लोग क्या क्या सीखे, हंसना सीखे हंसती, कुछ कहना हो तो वदती, कुछ जानना हो तो जानाती। और एक चीज मुझे बहुत प्यास लगा है, इसको हम लोग संस्कृत में जब ट्रांसलेट करने, मतलब किसी को कहना चाहे कि मैं बहुत प्यासा हूँ, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग हिंदी में जो यूज करते हैं तृष्णार्थ, या फिर बांग्ला में, तो इसका मतलब जो मैं प्यासा हूँ, तो प्यासा होने के बाद हम लोग जल पी रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं जल पी रहा हूँ। इसको संस्कृत के प्रथम पुरुष में आएगा पीवती, मतलब कुछ पान करना, पीवती, पीवती यानी कुछ पान करना। और उत्तम पुरुष का रूप होगा पीवामी। यहाँ पे जो धातु है पीप धातु है, पीप। एक चीज यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि पीवती और पीवामी, यहाँ पे वकार नहीं बकार आएगा, मतलब ये ऐसा मतलब पेट काटा जो है, तो पीवती पीवती, ये वेद का वकार नहीं आएगा।
ये जो वेद हम लोग कहते हैं, ये जो वकार है इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे पिबती, ये गलत है, यहाँ पे पिबती होगा। ये वकार का डिफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों का। तो रामः जलम पिबति, रामः जलम पिबति, रामः जलम पिबति। सर ये ब के नीचे हलंत है क्या? ब के नीचे क्या लगाया आपने? पिबती में, पिबती में ये तो अंडरलाइन किया है कि वकार को समझने के लिए, अनंत नहीं है। ब, अच्छा वो नहीं है ना, अच्छा सिर्फ सीधा ब है ना, सादा ब है। हाँ हाँ ओके ओके, थैंक यू। और एक चीज जो एक शब्द है, अच्छा ये जो एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये जो जलम आपने ऐसे लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जल म पूरा और हलंत, ऐसे भी लिख सकते हैं ना? हाँ 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 दोनों ही। पर अम्मा यहाँ पे जब एक सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ पे माँ ये जो है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, पर ये जो ऊपर अनुस्वर दिया है ये संधि है। और जो हम लोग जो संस्कृत में यूज करते हैं ये ज्यादा यूज होता है। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं जलम पिबती और जलम पिबती, ये दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। कुछ लोग बहुत विद्वान है तो वो कहेंगे ये जलम ये गलत है, यही सही है, पर ऐसा नहीं है। एक सूत्र है मोहन स्वारा, नो 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 सूत्र मोहन स्वारा जो सूत्र है उस ये जो यहाँ पे संधि है और जलम पिबती उसमें संधि नहीं है। पर नेक्स्ट मंथ से अगर संधि का क्लास हुआ तब हम लोग संधि सीखेंगे। सर एक क्वेश्चन है, सॉरी डिस्टर्बिंग, ये जो आपने ऊपर अनुस्वार लगाया है ये हम म बोल रहे हैं और ये ng नहीं होता, ng नहीं अम्मा, जैसे अहंकार, अहंकार में आता है हंग, अंग आता है ना। अम्मा स्वामी जी जो चैंटिंग क्लास है उसमें सिखाया हुआ है। यहाँ हाँ पे ठीक, अनुस्वर क्यों हुआ है मैं बता दूं। यहाँ पे जो अनुस्वर है इसका उच्चारण माँ क्यों हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प वर्ग है पिबती, इसका पहला जो वर्ण है प, यहाँ पे प वर्ग का जो लास्ट लेटर है वो है म। हाँ जी, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे अनुस्वर का उच्चारण माँ की तरह होगा। अच्छा ये बदलता है शब्द के हिसाब से, कभी ng होता है कभी म भी होता है, हाँ दोनों ही होता है, ठीक, थैंक यू। जैसे तच्छयोड़ा वृणीमहे जो चैंटिंग है, जो शांति मंत्र है, उसमें आप लोग देख सकते हैं तच्छयोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो अनुस्वर का उच्चारण है मतलब माँ हो सकता है, ना हो सकता है और चा ऐसा ही हो सकता है, मतलब अच्छा, वो डिपेंड करता है उसके बाद क्या। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। यहाँ पे एक तो मैं बता रहा था कि एक अम्मा पूछे कि यहाँ पे कीवती जो है यहाँ पे हलंत है कि नहीं। हाँ वो अंडरलाइन था, मुझे गलत लग गया, आपने अंडरलाइन किया था, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। एक चीज आप लोग देख सकते हैं गीता ध्यान मंत्र में व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना, तो वहां पे ग्रथिताम जो है तो वहां पे पूरा मतलब व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना, ग्रथिताम के नेक्स्ट जो पुराण है प है वहां पे इसीलिए ग्रथिताम। और एक चीज वसुदेव सुतम देवम, वसुदेवम वसुदेव सुतम देवम जो है वहां पे जो देवम है वहां पे जो अनुसार का उच्चारण है वो गांव के तरह होता है, क्योंकि उसके बाद देवम है। मतलब ये आप लोग महाराज के चैंटिंग क्लास है उसमें ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो एक चीज जो पिबती जो वर्ड है यहाँ पे मतलब कोई भी वर्ड हो
ये मतलब वाट के बीच में कभी हलंत नहीं आएगा अगर उसमें संधि ना हो। या फिर जो पीवती ये जो शब्द है हम लोग अगर इसको मतलब सी लेवल रखे तो ऐसा होगा, सपोज पीवती ये जो ये मेन शब्द है ये यहाँ पे मिडिल मतलब मध्य में क्यों हलंत नहीं आएगा ये जस्ट बता रहा हूँ। अगर पीवती ये शब्द को हम लोग मतलब सी लेवल डिवाइड करें तो ऐसा आएगा, ये आप लोग देख सकते हैं टी मतलब प प्लस ई, ये जो व है व मतलब व प्लस अ और ये टी है त प्लस ई। यहाँ पे प हलंत ये जो दोनों को जोड़ के हो गया पी, ये व है ये हो गया ब मतलब ब और अ और यहाँ पे तारी जोड़ के हो गया ती। क्योंकि ये जो प हलंत जो लेटर है ये भावल की मतलब ये स्वर वर्ण उसके बाद है, इसके अलावा ये उच्चारित नहीं हो सकता, इसीलिए उसके बाद में स्वर वर्ण रहने से ये उच्चारण हो सकता है, नहीं तो फिर पा बा ये उच्चारण नहीं होता क्योंकि इसका जो उच्चारण मात्रा ये हाफ है। तो ये सारे उच्चारण विधि आप लोग चैंटिंग क्लास से जान लीजिएगा। तो ओके थैंक यू। तो ये कीवर्ड थी, तो मैं इसीलिए कह रहा कि शब्द के बीच में कभी हलंत नहीं रह सकता। अगर हलंत रहेगा तो इससे उसके बाद जो वर्ण होगा उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे हम लोग ऐसा तृप्ति हो जाएगा तृप्ति, यहाँ पे हाँ। है उसके बाद ता के साथ जुड़ गया है। तो कुछ पीने का संस्कृत में उत्तम पुरुष में यूज करते हैं, पीवामी मतलब मैं पी रहा हूँ, मैं जल पी रहा हूँ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अहम जलम पीवामी, अहम जलम पीवामी। और राम पी रहा है या फिर मेरे दोस्त पी रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, रामः जलम पीवती या फिर मम बंधु जलम पीवती। तो पीने का संस्कृत है पीवती और उत्तम पुरुष में रूप है पीवामी। या फिर उसके बाद सपोज कोई अतिथि घर में आ रहा है या फिर कोई भी घर में कहीं से आ रहा हो, ये जो आने का इसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे, ये जो हम लोग सीखे थे कि जाने का हम लोग सीखे थे yesterday के गच्छति मतलब जाना, और आना क्या कहते हैं, आगच्छति। आगच्छति मतलब आना, और उत्तम पुरुष में क्या होगा, आगच्छामि। जैसे गृहात् बालकः आगच्छति मतलब घर से कोई लड़का आ रहा है, या फिर कलिकाता नगरात् या फिर ग्रामात् मतलब गांव से कोई आ रहा है, सपोज ग्रामात् रामः आगच्छति, ग्रामात् रामः आगच्छति। यहाँ पे ग्रामात् क्यों हुआ, हम लोग सीखे थे कारक में कि कहीं से फ्रॉम एनीवेयर, तो जहाँ पे फ्रॉम होगा वहाँ पे पंचमी विभक्ति का यूज होगा, तो इसीलिए ग्रामात् रामः आगच्छति। मैं स्कूल से जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो क्या होगा, विद्यालयात् अहम विद्यालयात् आगच्छामि मतलब स्कूल से आ रहा हूँ ऐसा होगा, तो अहम विद्यालयात् आगच्छामि। और एक चीज जो हम लोग बांग्ला में यूज करते हैं ना, जो आछी मतलब हम लोग जब जा रहे हैं तो तখন আমরা কি বলি যে বাংলায় আসছি, আসছি মানে আমি যাচ্ছি, जो इसको बाय कहते हैं अंग्रेजी में, तो संस्कृत में ऐसा नहीं होगा। मतलब आगच्छामि मतलब मैं जा रहा हूँ, और गच्छामि, जो गच्छामि और आगच्छामि के डिफरेंस क्या, मतलब बांग्ला में जो यूज होता है वो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ मतलब
मेरा कहने का मकसद है कि मैं जा रहा हूँ, तो संस्कृत में क्या होगा, आप गच्छामि मतलब मैं जा रहा हूँ, और आगच्छामि मतलब आ रहा हो, मतलब एंटरिंग। तो यही डिफरेंस है जो बांग्ला संस्कृत में थोड़ा सा। तो आगच्छति मतलब जो प्रथम पुरुष का रूप है, रामः आगच्छति, सः आगच्छति, सा आगच्छति और अहम आगच्छामि। इसी तरह हम लोग कहीं पे बैठते हैं तो बैठने को हम लोग क्या कहते हैं, उपविशति संस्कृत में, उपविशति। तिष्ठति। उपविशति मतलब बैठना, ये प्रथम पुरुष का रूप है, और उत्तम पुरुष का क्या होगा, उपविशामि। ये जो राम, सैम, जदू, मधु जो भी नाम है सब उपविशति मतलब प्रथम पुरुष के जितने भी है, सह, सा, तो वो होगा उपविशति। सपोज आसने कोई बैठ रहा, आसन में कोई बैठ रहा है, रामः आसने उपविशति, रामः आसने उपविशति। अगर मैं सिंहासन में बैठ रहा हूं तो क्या होगा, अहम सिंहासने उपविशामि, अहम सिंहासने उपविशामि। और यह जो हम लोग रूप सीख रहे हैं ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है सब। तो आगच्छति ये सब प्रेजेंट का रूप है, और उसके बाद हम लोग पास्ट सीखेंगे। तो ये है तिष्ठति का क्या मतलब, तिष्ठति का क्या मतलब, तिष्ठति में चलता है सीखेंगे अभी। तिष्ठति नहीं, उपविशति जगह मतलब तिष्ठति में बैठना नहीं है, तो है अम्मा। तो वो जो है, ये जो वो स्था धातु से आता है। तिष्ठति मतलब रहना, मतलब ये जो बोट है स्टैंड पे है, या फिर मैं जमीन पे हूँ, जमीन पे खड़ा हूँ, मतलब कहीं पे बैठना और रहना ये दोनों अलग चीज है। क्योंकि मेरे हाथ में ये डास्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये डास्टर मेरे हाथ में बैठा है। तो यहाँ पे होगा कि मार्जनी मम हस्ते तिष्ठति। यहाँ पे हम लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते कि उपविशति, मैं बैठ रहा हूँ और मैं कहीं पे खड़ा हूँ, ये दोनों का डिफरेंस जो है यही है तिष्ठति और उपविशति में डिफरेंस। हम लोग आसन में बैठते हैं, वहां पे रहते नहीं, हम लोग घर में रहते हैं, वहां पे बैठते नहीं। तो यही डिफरेंस है। हम लोग आएंगे यहाँ पे जो उपविशति है ये 20 धातु से आया है। ये उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है हम लोग बाद में सीखेंगे। तो ये विशति जो है उपविशति ये 20 धातु, ऐसा 20 धातु से आया है। और जो आप तिष्ठति है वो स्था धातु, यही डिफरेंस है स्था और तिष्ठति और उपविशति। तो उसके बाद हम लोग सीखेंगे। अच्छा अम्मा जो कह ही रही है तो सीख ले। तिष्ठति तिष्ठति मतलब कहीं पे रहना, कहीं पे खड़ा रहना, या फिर मतलब किसी आधार पे कुछ चीज रहना ही तिष्ठति होगा। जैसे हम लोग अभी अभी देखे कि हाथ में मेरा ये डास्टर है या फिर ये पेन है, मतलब ये तिष्ठति। और उपविशति मतलब हम लोग कहीं पे बैठे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जमीन पे खड़ा हूँ, मैं हूँ, अगर उत्तम पुरुष में हूँ तो होगा तिष्ठामि। उत्तम पुरुष का रूप है तिष्ठामि, तिष्ठति, तिष्ठामि। और एक चीज, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाना पकाना होगा। तो पकाने का संस्कृत में क्या होगा, हम लोग जानते हैं पाक क्या होगा, पचती। यहाँ पे पचती मतलब कुछ पकाना।
मैं जो भी है, भात दाल वगैरह बहुत सारे खाना है। तो पचती मतलब प्रथम पुरुष में है पचती। जैसे क्योंकि हिंदी में पाचना मतलब डाइजेशन, मतलब जो परिपाक होता है, हजम होता है, और संस्कृत में पचती मतलब पाक होना, कुछ पकाना, कुछ रान्ना करना, वैसे कुकिंग जो अंग्रेजी में पचती। जैसे पाचकः पचती, पाचकः मतलब जो कुक, जो रान्ना करता है, पाचकः पचती। हम लोग पाचकः पचती मतलब जो कुक है वो रान्ना, मतलब वो कुक पका रहा है, पाचकः पचती। तो अगर मैं खुद कर रहा हूं तो क्या कहूंगा? अहम पचामी, अहम पचामी। कुछ मतलब कुछ बनाने के लिए कुछ तो मतलब मार्केट से कुछ लेना पड़ेगा, तो मतलब कुछ ले आना पड़ेगा। तो ये जो मतलब कुछ चीज को जब आनते हैं, कुछ ले आते हैं, ले आना, उसको हम लोग संस्कृत में क्या कहेंगे? संस्कृत में बोलेंगे प्रथम पुरुष नयति। नयति मतलब ले जाना। सपोज मैं पेन, ये जो नयति है ये नी धातु से है, और नी से नेता, नेत्री, ये जो रूप है वो भी होता है। तो नयति, और अगर मैं कुछ ले जा रहा हूं तो होगा नयामी। सपोज राम माला ले जा रहा है कंटिन्यूअस, तो रामः मालाम नयति, रामः मालाम नयति। और अगर मैं कोई पुस्तक ले जा रहा हूं तो हम लोग क्या कहेंगे? अहम पुस्तकम नयामि, अहम पुस्तकम नयामि। तो यहाँ पे मैं ये सारे चीज मतलब लाइन में क्यों लिखा हो, यही कि यस्टरडे हम लोग एक शॉर्टकट सीखे थे। ये सीखना नहीं चाहिए पर बहुत जरूरी है। बीच बीच में हम लोग जब मतलब हम लोग याद नहीं रहता, तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि आगच्छति, उपविशति, तिष्ठति, पचति, नयति, ये जो है इसका उत्तम पुरुष में का रूप है, जो है आगच्छति हो गया आगच्छामि, उपविशति उपविशामि, तिष्ठति तिष्ठामि, पचति पचामि, और नयति नयामि। तो प्रथम पुरुष का जो रूप है और उत्तम पुरुष का रूप, अगर सपोज ऐसा हो कि प्रथम पुरुष का रूप याद है, उत्तम पुरुष का रूप याद नहीं है, तो हम लोग क्या करें? तो प्रथम पुरुष का जो रूप है आगच्छति, यहाँ पे जो ती है इसका हम लोग मतलब बात दे देंगे, ये ती सिर्फ आगच्छ इसको रखेंगे, इसके साथ आगच्छ, इसके साथ आमी मतलब आकार और नी, ये जोड़ने से ही उत्तम पुरुष का रूप आ जाएगा। आगच्छति आगच्छामि, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आकार और ये नी है, ये क्वेश्चन का अगर बात दे रहे हम लोग, यहाँ पे ती है, इसका हम लोग बात दे तो ये आगच्छ और आगच्छ ये दोनों सेम ही है। तो अगर हम लोग प्रथम पुरुष का रूप याद है, उत्तम पुरुष का रूप याद ना भी हो, तो आकार और नी जोड़ने से ही उत्तम पुरुष का रूप आ जाएगा। जैसे कि तिष्ठति, सपोज ये ती हम लोग यहाँ पे नी मतलब बात देते हैं, तिष्ठति, इसके आकार और नी जोड़ने से ही हो जाएगा तिष्ठामि। प्रथम पुरुष का रूप याद रखने से ही उत्तम पुरुष का रूप याद आ जाएगा। फिर आकार और नी इसको हम लोग को जोड़ना है इसी तरह। तो यही कहना था। उसके बाद हम लोग सीखेंगे, मैं तो ले जा रहा हूँ पर कुछ तो ले आना भी चाहिए। तो कुछ ले आना को मतलब कुछ मैं वहां से कुछ
मतलब जो आने टाइप की आनयेत होता है शायद। कुछ ले आना, तो सपोज मैं बाजार से आलू ले आ रहा हूँ, तो आलू को संस्कृत में क्या कहते हैं? आलू कहा। आलू का हत्या। तो ले आना को हम लोग ब्रिंगिंग जो है, सपोज आई हैव ब्रॉट पोटैटो, तो हम लोग उसको ले आना, मतलब घर में तो ले आना चाहिए, तो उसका प्रथम पुरुष जो रूप है आनयति, रामः पुस्तकम आनयति, और उत्तम पुरुष का रूप क्या होगा? आनयामि। जब मैं कुछ ला रहा हूँ उसका होगा आनयामि। अगर मैं और तुम के अलावा अगर थर्ड पर्सन कोई कुछ चीज ला रहा है, अगर प्रथम पुरुष में, तो होगा आनयति। जैसे राम, श्याम, रमा, दुर्गा जो भी है, सहा, सा, तो वो सब होगा आनयति। और मैं आनयामि, कुछ स्वीकार करना। सपोज कोई मुझको ये पेन दे रहा है, मैं ये पेन ले रहा हूँ, ये जो स्वीकार करना है, इसको संस्कृत में बोलते हैं, प्रथम पुरुष है स्वीकरोति। 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 रामः पुस्तकम स्वीकरोति, मतलब राम जो बोई ले रहा है, स्वीकार कर रहा है, स्वीकरोति। और इसका उत्तम पुरुष में क्या आएगा? अगर मैं कुछ चीज स्वीकार कर रहा हूं, उसको स्वीकरोमि। स्वीकरोमि। रामः मतलब प्रथम पुरुष में जो हुआ है स्वीकरोति, और उत्तम पुरुष में है स्वीकरोमि। उसी तरह मैं कुछ चीज कर रहा हूं, सपोज मैं पढ़ रहा हूं। पढ़ना मतलब एक चीज जो सपोज जो पचती है, पचती मतलब पाकं करोति, मतलब पका रहा है इसको। अगर मैं सपोज हम लोग जब पहले सीखे थे गच्छति, गच्छति और गमनम करोति, ये एक चीज है। गच्छति और गमनम करोति ये एक चीज है। तो ये जो है ये डायरेक्ट धातु है, और ये जो गमनम करोति, इसको ये बहुत इजी प्रक्रिया है कि पढ़ रहा है। सपोज हम मेरे को जो पढ़ना का जो धातु है याद नहीं है, पठती हम लोग जान गए। अगर सपोज कभी मतलब हम लोग भूल गए तो क्या करेंगे? तो हम लोग तब वहां पे लिखेंगे, सपोज ऐसे पठती जो है, पठती मतलब पाठम करोति, पाठम करोति, पाठम करोति। ये शॉर्टकट है। तो स्वीकरोति मतलब स्वीकार कर रहा है, पर ये जो गमनम करोति, पाठम करोति, करोति, ये जो है ये करना, मतलब कोई कर रहा है। ये प्रथम पुरुष का रूप है करोति, और उत्तम पुरुष में करोमि। जैसे स्वीकरोति और करोमि। करोति मतलब करना, कुछ करना, सपोज पढ़ रहा है, खा रहा है, जो भी है। तो जो लास्ट हम लोग आज धातु सीखेंगे वो है रहना, मतलब वो है,
मतलब जो अस्थि, ये जो अस्थि जो है ये अस धातु से है। अस्थि मतलब रहना, मतलब रहना मतलब जो लाइक ईजनेस जो है, जैसे कि हम लोग जो ब्रह्म जो वाक्य है, जो 4 महावाक्य है, अहम ब्रह्म अस्मि, तो इसका अस्थि जो रूप है ये प्रथम पुरुष का रूप है, उत्तम पुरुष का रूप है अस्मि। अस्मि मतलब मैं हूं, अहम ब्रह्म अस्मि। तो ये है अस धातु, ये जो अस्थि है ये अस धातु से है। करोति जो है ये क्री धातु से है। और स्वीकरोति ये भी क्री धातु से है, और उसके पहले जो स्वी है ये उपसर्ग है, और नयति ये नी धातु से है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है धातु, हम लोग बाद में जब डिटेल्स में सीखेंगे तो तब हम लोग सीखेंगे। तो आनयति मतलब कुछ मतलब ले आना, स्वीकरोति मतलब कुछ स्वीकार करना, करोति मतलब कुछ करना, और अस्ति मतलब रहना। तो आज हम लोग ये सारे धातु सीखे, और हम लोगों के पास 7 मिनट है। तो 7 मिनट में हम लोग क्या सीखेंगे? Excuse me, can I just say something? 1 minute, please. हाँ बोलिए। Tithasti is also staying. Tishtati इष्टति, हाँ is staying, और फिर भी asti भी staying. दोनों ही तो staying होता है। नहीं, मैं इसीलिए बोला कि ये तिष्ठति, ये जो रहना है ये डिफरेंट है। तिष्ठति मतलब जो किसी आधार है या अधिकरण में रहता है, वो सपोज जो इसी के ऊपर रहता है, इसी के ऊपर रहने से तिष्ठति होता है। जैसे अम्मा हियरिंग और लिसनिंग 2 वर्ड्स, और जो सुनने का है इंग्लिश में, बोथ आर डिफरेंट। जैसे हम लोग सीइंग और वाचिंग ये दोनों डिफरेंट है, उसी तरह हम लोग अम्मा एक चीज यस्टरडे जो हम लोग एक स्टोरी सुने थे, दशरथः इति राजा अस्ति, दशरथः इति राजा अस्ति। तो वहां पे जो अस्ति है, तो हम लोग लाइक देयर इज ए किंग नेम दशरथ, यहाँ पे जो इज है उसका मतलब अस्ति, और जो तिष्ठति है वह ये जो रहना, मतलब अहम गृह मैं घर में हूं, तो इसको हम लोग संस्कृत में क्या कहेंगे? अहम गृहे तिष्ठामि, रामः गृहे तिष्ठति और रामः गृहे अस्ति। ये दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, पर हम जो मतलब जो बोल रहा है उसकी विवक्षा के अनुसार जो सुन रहा है हम लोग उसको समझ लेना चाहिए। जैसे कि डिफरेंस है, तिष्ठति मतलब हम जो कहते हैं मतलब किसी अधिकरण में, राम स्टेज एट होम, राम गृहे तिष्ठति। उसी तरह जो दशरथ इति राजा अस्ति मतलब दशरथ नाम के एक राजा है मतलब, तो यही डिफरेंस है। मैं कहूँ वो एक है ना, अधिष्ठान हो गया, ये भाववाचक हो गया है ना। है इज जिसका अदृश्य है, मैं अहम अस्ति, उसमें जो एक स्थल है जड़ के, हाँ इसमें जड़ के साथ में कनेक्शन है, जहाँ रहते हैं स्थल तिष्ठति वो उसमें, और अस्मि वो भाव से हो गया। वो ऐसा नहीं है, मतलब ये जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से बदलता रहता है। ये बहुत आसान चीज है, क्योंकि एक चीज हम लोगों का याद रखना पड़ेगा कि जो अधिकरण है वहां पे तिष्ठति होगा। वही तो। और सपोज आई एम ए बॉय, तो यहाँ पे अहम बालका अस्मि, बालका अस्मि, ही इज ए गर्ल, सॉरी शी इज ए गर्ल,
सा बालिका अस्ति, तो वहां पे इज है, वहां पे इज मतलब तो रहना नहीं है। वही बात है, ठीक है। तो वेदांत, जैसे कि वेदांत का इजनेस जो है वो अस धातु से प्रकाशित होता है। अस मतलब अस्ति, अस्मि, और तिष्ठति जो है वो स्था धातु है, तिष्ठति। ओके, तो अम्मा आप लोग बोलिए, अब आज के क्लास में कोई मतलब आप लोग समझने के नहीं पाया, एनीथिंग, कोई डाउट? एक क्वेश्चन है, नयति और आनयति का डिफरेंस बताइए थोड़ा सा। अम्मा और एक बार। नयति और आनयति। अच्छा, जैसे हम लोग नयति मतलब जाना, आनयति मतलब आना, यही जाना आना नहीं है। मतलब जो नयति है, कुछ हम लोग सपोज मैं इसको ले जा रहा हूँ, तो हम लोग क्या कहेंगे, अहम लेखनी नयामी, मैं इसको ले जा रहा हूँ। और मैं एक पुस्तक, जैसे राम पेन लेके जा रहा है तो होगा रामः लेखनी नयति। ओके। और अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि दुकान से पेन लेके आओ, तो वो तो पेन मतलब ला रहा है, तो हम लोग वो ला रहा है, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, सह लेखनी आनयति, आनयति। ठीक है, समझ गए, थैंक यू। और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जो कारक सीखे हैं और जो भी जो संख्या सीखे हैं, जो समय जो है जो सीखे हैं। हरिओम, हमको एक बात बोलना था। हाँ अम्मा बोलिए। वो जितने भी यहाँ पर डिवोटीज हैं, सबको उनको इन्फॉर्म करना है कि सब गुरु दक्षिणा अब दे देंगे, क्योंकि गुरु दक्षिणा काफी दिन हो गया, क्लासेस काफी हो रही है ना। तो मॉर्निंग क्लास में जो अटेंड कर रहे हैं वो तो समझ गए हैं, पर जो संस्कृत में नए आए हैं उनको भी बोलना है कि प्लीज सब लोग गुरु दक्षिणा या तो कैश दे दीजिए मिशन में, या फिर है ना ऑनलाइन बैंक अकाउंट में जमा दे दीजिए। और किसी को बैंक का अकाउंट नंबर चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट कर लेंगे। हरिओम, वो मैसेज कर दीजिए ना बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स। आप you put it in the WhatsApp, then everybody will get it ना। Why should all of us get in touch with you? ठीक है, हम व्हाट्सएप में हम कर दे रहे हैं। Yeah, कर I देंगे। told you that day Ila Amma said, we all said put it in the WhatsApp. So she said Veena Amma is going to put it in the WhatsApp. बिना अम्मा आप एक बार मुंह में बोल दीजिए अकाउंट नंबर जो है तो। No, we can't write. नहीं, वो प्रॉब्लम होगा, हम दे देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ, WhatsApp कर दीजिए। सुनिए, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, तो मैं अपना नंबर दे देती हूँ अभी, आप प्लीज मुझे ऐड कर लीजिएगा। हाँ बोलिए आपका नंबर। 98369। एक मिनट 98369 फिर 69 है क्या? 98369 हाँ 68 फिर 68 है क्या? हाँ 2 बार 0। ये तो 9 नंबर हुआ, कहाँ हुआ? 98369 हाँ 68680। आपका नाम? दीपा। हाँ ठीक है, थैंक यू। मनसा, हाँ हरिओम, नाउ इट्स स्टोरी टाइम। आपका खत्म होने से फिर मेरे को एक बात बोलना है, आप कर लो अपना फिनिश। ओके, हम लोग एक छोटा, बहुत छोटा और बहुत जानी पहचानी एक स्टोरी सुनेंगे पर संस्कृत में। और एक चीज जो मतलब ये जो स्टोरी है आप लोग लिखेंगे, और ये टास्क रहेगा कि नेक्स्ट डे, ये तो हम लोग ट्रांसलेट तो करेंगे ही, और नेक्स्ट डे वो जो हम लोग जो स्टोरी है इसका कारक विभक्ति आप लोग निर्णय करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। और एक चीज, मुझे बहुत अम्मा व्हाट्सएप कर रहा है
कि कुछ चेक करने के लिए और कुछ है, पर रात 2 बजे में प्लीज मत कीजिए कि सुबह कैसे मैं उसको रिप्लाई दे सकूं। तो जो भी है, ओके नाउ स्टार्ट। तो हम लोग हंसेंगे, ठीक है? तो पहले Please go slowly, okay? Because we ओके have ओके full time. तो हम लोग जैसे जानते हैं, एकः काकः अस्ति, काकः अस्ति, सः अटति अत्र Oh, तत्र। can't follow so fast. You have to write, no? अम्मा मैं बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है अम्मा? और एक चीज, एक काकः अस्ति। एकः काकः अस्ति, मतलब एक कौवा है। हाँ मामा, ये आप लोग समझ लीजिएगा, और अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो नेक्स्ट डे आप लोग बताइएगा, ठीक है? तो एकः काकः अस्ति, सः अटति अटति, सः गच्छति। तो अभी तो 12 बजे है बेटा, उसने 12:30 कहा है ना, 12:15 का। ठीक है, फिर मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। हाँ अम्मा आप म्यूट कर लीजिए। तो ठीक है, तो बहुत क्विकली हम लोग ये खत्म करेंगे। तो आप लोग लिख लेंगे, कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जस्ट सुनिए, ठीक है? एकः काकः अस्ति, सः गच्छति अत्र तत्र, सः सर्वत्र एव गच्छति, सः तृष्णार्थः अस्ति, सः तृष्णार्थः अस्ति, सहसा सः एकः घटं दृष्टवान्, सहसा सः काकः एकं घटं दृष्टवान्, तत्र घटे जलम् अस्ति, परन्तु किंचित् जलम् अस्ति, तत् पात्रं तस्य पात्रस्य जलस्य अवस्था या आसीत् सा अतीव सूक्ष्म। अम्मा आप प्लीज यूट्यूब से लिख लीजिएगा ना, स्टोरी टाइम, नो पढ़ाई। तो ततः परं सः काकः चिन्तितवान् यत् केन प्रकारेण अहं जलं पीबतुं शक्नुमः। तदा सः एकः प्रचेष्टा कृतवान् यत् तस्मिन् पात्रे प्रस्तरखण्डं सः पतितवान्। तदा प्रस्तरखण्डमाध्यमेन जलस्तर उच्चैः उत्तिष्ठवान्। तदा सः काकः जलं पातुं शक्नुमः। तो ये जो स्टोरी है आप लोग अब, तो एक टास्क आप लोगों के लिए है कि इसी तरह हम लोग जो सीख रहे हैं, जो मतलब जितने सारी भार और जो कारक हम लोग सीखे हैं, आप लोग लिए भी एक टास्क होगा कि 7 दिन है, 7 दिन में आप लोग खुद एक छोटा छोटा स्टोरी बनाएंगे और एक एक दिन आप सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद 2-3 मिनट हम लोग सभी को सुनाएंगे। ओके, हरिओम, ओवर टू महाराज।
Very difficult story, Mansa. No difficult story. From your childhood, when you were like that, you used to listen to that story. Ekaha kakaha asti, That one I understood. atra tatra sarvatra gacchati, That also I understood. hatritvarta bhavati. Okay. Sahasa ekam ghatam pashyati. Okay. हो गया समझ आ गया. बस हो गया. तो ऐसे छोटा स्टोरी बनाइए अम्मा. नाटक हर दिन हर पल में चलते हैं हमारा संसार में. आप लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं हम लोग. अच्छा, मेरे को एक बात बोलना है. बोलिए. एक क्यों, दो बोलिए. नहीं, कल मेरी वजह से जिसका क्लास मिस हुआ होगा उससे मैं सॉरी बोलती हूँ. अरे छोड़ दीजिए अम्मा, कल तो कल हो गया. नहीं, मेरे को बहुत खराब लगा मेरी वजह से सबका. अरे मेरे वजह से भी हुआ. मैं भी अंडरस्टैंड नहीं किया ना. आपका आवाज है फोन में. आप इतना क्लियर जैसे रूम में है, फोन में ऐसे नहीं है. आपका जो जिस स्थान में बैठकर आप फोन करते हैं अम्मा, उसमें से सुनाई नहीं देता. तो गलती मेरा भी है. गलती किसका नहीं है, ये सारे राम का खेल है. वही तो मुंडे सारा जहां में लगा पता तेरा नहीं. जब लगा पता तेरा फिर भी मेरा नहीं. फिर भी मेरी वजह से जिसका ये जो हुआ होगा तो मैं माफी. कुछ नहीं. आनंद गया कल कभी वापस नहीं आएगा. आज का मजा लीजिए. हर रोज थोड़ा कोशिश कीजिए संस्कृत में लिखने का. भूल कीजिए ना. कल मैंने भेजा है. यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लोग करते हैं. कल मानसा को भेजा है रात को. पता नहीं कितना सच होगा. नहीं, अरे सच वो तो छोड़ दीजिए. सिर्फ काम करते ट्राई करना है. यस. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम स्वामी जी. हरि ओम. Please try to attend tomorrow 9 o'clock Vedanta class. Otherwise, what's the use of learning Sanskrit if you don't study Shastra? And ask other ammas how the text is so beautiful. Please try to attend. Hari Om. We will meet together at 9 o'clock. Thank you. Thank you, Mansa. Thank you, Swamiji. Thank you.